हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। अशफाकुल्लाह खान ट्रस्ट के सदर, कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता फारूक पाशा की खिदमत को सलाम। वक्त वक्त पर करते हैं खिदमत खल्क के काम। जी हाँ दोस्तों, माह रमज़ान में खिदमत खल्क का प्यारा निराला मंजर आप देख रहे हैं। टैनरी रोड गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल में हर साल की तरह इस बार भी रमज़ान के राशन किट्स तकसीम किए गए। इस कदीम सरकारी स्कूल में ज़ेरे तालीम 200 के करीब तलबा व तालिबात के वालिदैन को रमज़ान राशन किट्स तकसीम किए गए। पुलकेशी नगर के एमएलए AC श्रीनिवास ने इस तकरीब का इफ्तिताह किया। मुजाहिद आज़ादी अशफाकुल्लाह खान की याद में कायम अशफाकुल्लाह खान एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत हर साल माह रमज़ान में ये खिदमत अंजाम दी जाती है। ट्रस्ट के सदर, कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता फारूक पाशा अपने सरफ़े खास से राशन किट्स का अतिया देते हैं। इस साल 150 से ज़ायद ख़ानदानों में ये मदद तकसीम की गई है। सेक्रेटरी एजाज अहमद और ट्रस्ट के दीगर ज़िम्मेदारान सब मिलकर इस खिदमत को अंजाम देते हैं। फारूक पाशा ने कहा कि अशफाकुल्लाह खान ट्रस्ट ने इस स्कूल को एडॉप्ट करते हुए यहाँ की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश की है। एमएलए AC श्रीनिवास ने अशफाकुल्लाह खान ट्रस्ट और इस ट्रस्ट के सदर फारूक पाशा की खिदमत की तारीफ़ व सताइश की और कहा कि ऐसी खिदमत हर सरकारी स्कूल में अंजाम देने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस मौके पर अशफाकुल्लाह खान ट्रस्ट के ज़िम्मेदारों ने स्कूल की तामीर व तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले सैयद फारूक साहब को याद किया और फारूक साहब के हक़ में दुआए मग़फ़िरत की। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಟಾಣಿ ರೋಡು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಇದು. ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ 80s 90s ಆವಾಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಾಲೆ. 80s 90s ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾವು. ಆವಾಗಿಂದ ಶಾಲೆ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ MLA ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ 2ನೇ ರೌಂಡೋ 3ನೇ ರೌಂಡೋ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಇದ್ದರು, ದಾನಿಗಳಿದ್ದರು, ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೊಬೇಕು. ಸೈಯದ್ ಫಾರೂಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇದು ಅವರು ಪಾಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವರು ಈಗ ನೋ ಮೋರ್. ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅವರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ, ಕೊಡುಗೆ ಮಾಡೋರನ್ನ ಯಾವಾಗೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮಗೆ. ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಚಿತ ರೇಷನ್ ಬಡವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಂಥ ಫಾರೂಕ್ ಪಾಷಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಾನಿಗಳು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದಾನಿಗಳಂತ ನಮ್ಮ ಎಜಾಜ್ ಬೈ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಫೈರಜ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇರ್ಷಾದ್ ಅಹಮದ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ದಾನಿಗಳು, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಜಫರುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಹಬೂಬ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಿಕ್ದವ್ರದ್ದು. ಇನ್ನು ಫಾರೂಕ್ ಅವರು ಮಗ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೆಂಬರು, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನವಾಬ್ ಜಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಸಿಸ್ಟರ್ಸು, ಟೀಚರ್ಸು, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು, ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಜೊತೇಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ 2 ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಜೋಶು, ನಮ್ಮ ಫಯಾಜ್ ಖಾನು, ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಶೋಕು, ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳು ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಸೀರು, ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು, ಅಕ್ಬರ್, ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಕ್ಬರ್, ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನನಗೆ. ಇವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಲೋಕಲ್. ಹೆಚ್ಚಿದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇರೋವರೆಗೂ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ.
ಈಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಹೇಳಿರೋದು ಅದೇ, ನೀನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 10% ಆದರೂ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು, ಆವಾಗಲೇ ನೀನು ಮನುಷ್ಯ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀನು ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿ. ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಜನಗಳಿಗೆ, ನಾವು ದುಡಿದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲು ಕಿವಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ನೀನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮಜಾ ಮಾಡುವಂತಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ, ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರು, ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿರು, ಜನಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರೋರನ್ನು ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ರೈಟ್ಸ್. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ರೈಟು. ಆ ರೈಟ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಸಮಾನ? ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಾಪ ಅವ್ರು ಬದುಕೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಓಡಾಡೋ ಶಕ್ತಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಬಡವರಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ದೇವರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ನಾವು? ನನ್ನ ದೇವ್ರು ಹೊಲಿಸ್ಕೊಳೋದು ಹೆಂಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಆದರೆ ಸಾಕು, ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಹೊಲಿತಾನೆ, ನಾವು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಪಾಲಿಸಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲೂ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ? ಅಂಗವಿಕಲರು, ಕುಂಟರು, ಕಿವರು, ನಮ್ಮ ಬಡವರು, ಅವರೆಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ದೇವರು ತಥಾಸ್, ನೀನು ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಗಾಡ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾಡ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಇವ್ರ ಗುರುಗಳು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ಜಿ ಅದೇ ಹೇಳಿರೋದು, ಸಹಾಯ ಬಡವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡು, ಶಾಂತಿಯಾಗಿರು, ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು. ದೇವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 5 ಸಲ ನಮಾಜ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ದೇವರ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಎಜಾಜ್ ಬೈ, ಫರೂಕ್ ಬೈ, ನಮ್ಮ ರಿಷಾದ್ ಬೈ, ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಕಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೇಮ್ ಕಿಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಟೋಕನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಕಿಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಡವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ನಾನೇನು ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ, ಕಾಲುವೆ, ಚರಂಡಿ, ಒಂಟಿ ಮನೆ, ಈ ರೋಡು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಜರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ವಾಟ್ರು. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಹೆಂಗಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ವಾಟ್ರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತು, ವಾಟ್ರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ನೀರು ಅಂದರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ವಾಟ್ರದ್ದು. ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 30 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇನ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋ ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಆ ಥರ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. अशफाकुल्ला खान चैरिटेबल सोसाइटी का एजुकेशन सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ. सेक्रेटरी हैं, ट्रस्टी हैं, बहुत सारे इनोवेट ट्रस्टी हैं, बहुत सारे हैं इधर. ये 10-15 साल से बांट रहे हैं. इससे पहले हम सरवाट नगर में करते थे. उसके बाद हमारे एजाज साहब बोले कि इधर भी जरूरत है. 15 साल से इधर स्कूल में जब हमारे जनाब फारूक साहब थे, मरहूम फारूक साहब थे, वो स्कूल का पूरा देखभाल कर रहे थे. तब हमें साथ में थे उनके, और हमें एक स्कूल को अडॉप्ट करें जिसका नाम दिया अशफाकुल्ला खान एजुकेशन सोसाइटी ट्रस्ट का नाम दिया है. तो सब मिलकर हम साल ये करते हैं.
और फिर बच्चों के कपड़े भी दिए, फिर CCTV भी लगवाए क्योंकि बच्चों में बड़ा प्रॉब्लम होता है, कौन लड़ते हैं कौन बदलते हैं जी। मालूम नहीं होता था, इसके लिए CCTV भी लगाए। बहुत सारे डेवलपमेंट की चीज़ें करे इधर। हमारे फारूक साहब का अल्लाह अच्छा रखे, अल्लाह जन्नत मकबूल फरमाए। तो ये स्कूल का पूरा एक ऊपर से आना उन्हीं का चाहिए, अभी अब उन्होंने नहीं रहे इंशाअल्लाह, हमारे उनके फर्जंद हैं और उनके रिश्तेदार हैं। हमारा खाली क्या भी नहीं इसका चाहिए, इस चीज़ का अब्दुल्ला खान का, वो हमें अडॉप्ट करके हैं और अडॉप्ट में क्या क्या आता है, क्या क्या इसमें डेवलपमेंट काम होता है, उसी के हम लोग हमारी टीम होता 600 बचत स्कूल के, इसमें क्या भी हमारा ये नहीं है। कितने राशन किट तकसीम किए और कैसा लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं सर? हमने आइडेंटिफाई करते हैं, स्कूल के मैनेजमेंट वाले उनको टोकन दे देते हैं। जी जी। पिछली बार हमने 250 से 300 तक थे, जितने बच्चे पढ़ रहे सबको टोकन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से दे देते हैं। तो हम लोग पूछ के सप्लाई करते हैं, सप्लाई के बाकायदा माशाल्लाह इससे ज़्यादा सिस्टम से करते हैं काम। ये सबसे अच्छी स्कूल है उर्दू स्कूलों में और गवर्नमेंट स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल है, ताकि टीचर्स हेड मिस्टर्स इससे पहले भी एक हेड मिस्टर प्रिंसिपल जो है तहसीलदार में जो आज भी हम याद करें वो रिटायर्ड हो गए। तो मैं चाहता हूँ और ये लोग अच्छा है करें, प्लस मैं पेरेंट्स से भी यही इत्तला करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि वो बच्चों को देखें। यहाँ 3-4 घंटे रहते हैं, हज़ारों के बच्चे बच्चों घर पर जाने के बाद उनका यूनिफॉर्म, उनके होमवर्क, उनके किताब, उनके अखलाक, ये सब सही रहना। खाली पढ़ ले तो नहीं, पढ़ने का मकसद क्या बोले तो अखलाक सही रहना। ज़िंदगी में अखलाक है तो कुछ नहीं। तो महात्मा गांधी साहब बोले थे, when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. Character is lost, everything is lost. पूरा ख़त्म हो जाता आदमी। इसलिए हमारे मुसलमानों की हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि भाई इंसान की इंसानियत ज़रूरी है, उसके बाद सब कुछ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, पूरा तो नहीं छोटा सा तैयार, हमारी पूरी टीम है, टीम मदद करेंगे इंशाअल्लाह। मैं चाहता हूँ पूरे टीचर्स एक हो जाएँ, ये ना इत्तेफाक़ी ना रहे, बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाएँ इंशाअल्लाह। याद रह जाता है हमारे टीचर्स 50 साल पहले पढ़ेंगे, आज भी याद है टीचर्स को, हालांकि इंतकाल भी हो गए, आज भी उनके बच्चों को देखकर उनकी तारीफ करते हैं। इस तरह से तमाम टीचर्स जो हैं उनके बच्चों को याद रखते हैं, नहीं याद रखते बाकायदा 50 साल तक याद रखते हैं। और ये हमारे बच्चे आज के ना फ्यूचर के, हमारे कंट्री के फ्यूचर हैं, हमारे देश के फ्यूचर हैं, हमारी कौम के फ्यूचर हैं, उनको ये बनाना ज़रूरी होता है। हर माँ और माँ बाप भी होता है, हर माँ है ना वलियों को पैदा करें, नबियों को पैदा करें और फिर गलत लोगों को पैदा करें। गलत पैदा करते तो टीचर, लेकिन उनका देखभाल जो नहीं होता तो गलत होता है। तो यही मैसेज है कि मैं रमज़ान का महीना है, सब रोज़े रखो, मेरे लिए दुआ करो, मेरी टीम के लिए दुआ करो और फिर अल्लाह की दुआ से अखलाक का मेन ये रखें। अखलाक नहीं सब कुछ अच्छे हो जाते हैं। पैसे कमाने के अखलाक नहीं रहते, जुआ खेल के छोड़ा पूरा छोड़। इसी तरह से जुआ खेलते हैं, ये खेलते हैं, वो खेलते हैं। तो मैं यही एक मैसेज दे रहा हूँ कि पहले एजुकेशन, फर्स्ट एजुकेशन। यहाँ तक कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हैं अगर आप एजुकेशन पाना है तो चीन में जाना है तो जाओ, एजुकेशन नहीं तो बेकार। जानवर और हमारे में क्या भी फ़र्क नहीं है। एजुकेशन में अच्छा बुरा मालूम होता है, हराम हलाल, अच्छा बुरा सब चीज़ एजुकेशन शेयर को मालूम होता है। ये दो बात कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद। रमज़ान का एक मुबारकबादी। हाँ, मैं सब लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ और रमज़ान की ईद की एडवांस से मुबारकबाद देता हूँ। सब खुशी खुशी ईद मनाए, हम लोग सब मिलकर एक रहेंगे, सब मिलकर साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरी ये दुआ है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं एजाज़ अहमद, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अशफाक़ुल्लाह खान एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से आज यहाँ पे स्कूल में जो भी किट्स हम तकसीम कर रहे हैं, ये पिछला सिलसिला है। पहले से हर साल की तरह इस साल भी हम किट्स तकसीम किए हैं। एक इसकी बात यह है कि हमारे एक दोस्त सैयद फारूक साहब जो पहले हमारे साथ रहते थे, इस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे, इस साल हमारे दरमियान नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनके अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे, इनके दर्जात को बुलंद करे। और दूसरा यह है कि यहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं और इनके वालिदैन के लिए कुछ ना कुछ छोटी बहुत हम मदद कर सकें, इस कोशिश में हमें कुछ ना कुछ तकसीम करने की कोशिश करते हैं। आज जो किट्स हमें तकसीम किए हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम को तरक्की दे, अच्छा इल्म दे, बच्चे जज्बात से स्कूल को आने की ख्वाहिश रखें। इसलिए बच्चों को इंकरेज करने के लिए हम ये प्रोग्राम भी इस तरह के ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। इंशाअल्लाह आगे भी दुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद गनी
हमारे वालिद सैयद फ़ारूक साहब जिनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने ये स्कूल कंस्ट्रक्शन करे, उन्होंने चलाते थे, उन्होंने देखभाल करते थे, बहुत मेहनत पड़े। ऑफिसर में BBMP ऑफिस में इधर उधर जाना, खुद करना। पहले बहुत कबीले की स्कूल थी है, वॉशरूम नहीं था, क्या भी नहीं था, पानी सब चीता था, तो बहुत इधर उधर फिर को मेहनत पड़ गो। हमारे फ़ारूक साहब एजाज साहब के साथ मिल को बहुत मेहनत पड़ गो। ये कंस्ट्रक्शन को पूरी बुनियाद रखे, कंस्ट्रक्ट करे, बच्चों के वास्ते बहुत सहूलत करे। और हर बार उन्होंने राशन बांटते थे, कपड़े बांटते थे, सब करते थे। आज उन्होंने नहीं ही, हमें उनके बच्चे ही, उनके भाई अमाना ही, उन्होंने सब मिलकर इंशाल्लाह ये स्कूल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर दी। वही साथ सुनो जैसा चलाते थे, उसके बाद भी इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन कर को बच्चों को हर चीज़ की सहूलत, एजुकेशन, हर चीज़ की जो हमारे से मदद हो सकती है। हमारे वालिद आपका जो वालिद साहब का सिलसिला तो वो आप जी ज़रूर इंशाल्लाह वैसा कायम करेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे, उनका नाम वैसा रखेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। जज़ाकल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आयशा भी सैयद फ़ारूक की बड़ी बहन, ये स्कूल की मेंबर मैं भी। ये स्कूल है ना, हम बहुत पुरानी, ये टैनी रोड के वास्ते यहाँ की बहुत जिद्दोजहद के बाद ये स्कूल को इतनी बड़ी कामयाबी मिल को है। सो आज जिनके बदौलत आज ये बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। इससे पहले यहाँ के मुसलमान बच्चे मुंडेडी पढ़ने को जाको पढ़ना पड़ता था। इस वास्ते यहाँ के बड़े बुजुर्ग पहले है ना, ये सूझ को बैठ को बच्चे यहाँ के इतनी दूर नहीं जाना कर को, ये जगह है ना देखो गवर्नमेंट के वास्ते दे डाल को जगह है। ये मुसलमान बच्चे यहाँ पढ़ना, मुसलमानों के कौम आगे बढ़ना कर को सूझ को ये जगह मुसलमान है ना, यहाँ के बड़े बुजुर्ग हमारे ये जगह गवर्नमेंट को देखो है सकते। और उसके बाद हमारे बुजुर्गों की मेहनत के साथ साथ ये स्कूल को दिन ब दिन तरक्की कर ले को गए, पीछे तो काम भी कौन भी नहीं ले को गए। अल्लाह का फजल आज इतनी बड़ी स्कूल है, एक शानदार स्कूल खड़को है। हमारे बुजुर्गों की, हमारे भाइयों की बदौलत है आज इतनी बड़ी स्कूल खड़को है। और ये जो राशन बांटने का सिलसिला है, हर कोई रमज़ान में ना वहाँ बांट लेती, वो टोकन ना गलत आदमियों के हाथों में चले जाती, सही बच्चों को, सही आदमियों को नहीं मिलते। उसके वास्ते हमारे फ़ारूक इंजीनियर साहब है ना, एक आइडिया कर को गरीब बच्चों को, उनके पेरेंट्स को स्कूल में बुला कर देंगे कि तो रिकॉग्नाइज हो सकते हैं बच्चे और पेरेंट्स, बाहर का आदमी कौन भी आको नहीं ले सकता। इसके वास्ते है ना फ़ारूक अशफाकुल्लाह खान ट्रस्ट की जानिब से है ना ये सिलसिला, और हमारे फ़ारूक भी मिल को है ना ये बच्चों को यहाँ से दिए तो इनके पेरेंट्स को सही आदमियों के हाथ में राशन जाता है, गलत आदमियों के नहीं की तो दूसरी जगह बांटे तो कहता है उन्होंने 10 टोकन उनके आदमियों दिया, 10 टोकन इनको दिए, ऐसा हो जाता है। इसके वास्ते यहाँ ये उनके पेरेंट्स को बराबर से हक, उनका हकदार को हक पहुँच जाता है कर को देखो है। इंशाल्लाह इसके बाद भी है ना ये स्कूल में जो कुछ भी अच्छा है यहाँ ज़रूरी है, पूरे पढ़े लिखे आदमी हैं, आज कौन भी अनपढ़ा नहीं। मैं भी प्रेजेंट उनके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई ये, और मैं सबको रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद देती हूँ। आने वाला रमज़ान सबको सेहत, खुशियाँ, अमन अमान के साथ गुजारने की दुआ करते हैं। ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಮುಬಾರಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಗಳಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರ ನೆನೆದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ. ನಿಮಗೇನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀರು, ರಸ್ತೆ, ಕಸ, ಲೈಟು, ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ.